So, Hi, Captain. hello, how are you? I'm good. I'm good. It's good to be back. Yeah, it is good to have you. It feels like old times. Acha, so people, Achu is somebody who has already learned photography, graphic designing, illustration from me. Okay, so she is just here. Illustrations Graphic design, illustration, and photography, right? and became your facilitator for illustrations also. Yeah, she was basically where we take lectures now. So we have facilitators also who facilitate, who handle the crowd and everything. So she has been my facilitator as well. Today she is here in the responsibility of my student. All right, and it is great to have you back. Yes, Captain. Cool man. अच्छा, by the way, तुम लोग मुझे सर या भैया बोल सकते हो. These people keep calling me captain because the place where we used to work, they used to call us captains. ठीक है? So, Abhishek, you came directly from YouTube, right? Acha, this is going to be an interactive session, so please do not hesitate to talk at all. Everybody, hi. All right. So, basically, I'll start with my introduction and everything. All right. So, I have been teaching photography for about 3 years now. Okay. I started teaching my teaching career when I was actually a graphic designer, still working as a graphic designer, and I taught corporates. And I was teaching the Moog group how to do photography. It was basically for their corporate things and everything. Then I taught lectures to professionals to become photographers, and I did a couple of outdoor workshops. Then my captain, which is basically an ed tech, called me, and then I started teaching there. I am also visiting faculty at Xavier's College, Mahim, for photography and radio. And other than that, recently I have also taught in schools for photography. So that photo that you see now in the WhatsApp group, it is of that. Okay. Other than that, it is basically 4 o'clock. So let me say this. Okay, first of all, when you are here, maybe you don't join in for the session, or you are here just for the check-in, or you want to join photography, whatever it is. Please know that this is an arts lecture. Okay, to please chill, enjoy your time, have fun. All right, don't worry about tomorrow, what is going to happen and what is not going to happen. Also, one other thing is that we all go through a lot of problem in life, okay, from day to night. So when you are here, I just want you to chill and enjoy the lecture. All right. Other than that, there will be no discrimination on whatever the grounds are. All right. So for example, I don't care what political party you love, you hate, what religion you come from, what color of your skin is, what language you speak. Also, one more thing included, what your creativity is. Okay. I have no level after even teaching and working in the field, all right, for more than 6 years now. I have no level or no particular personality to judge your work at all. Your creativity reigns supreme. Your creativity is where it is. I will not judge it. I will just show you the way of how you can become a better photographer. Clear? Now, with that being said, the reason I say that I won't judge you on the language as well, because I am fluent in Hindi and English both. So, by any chance, if any of you is not understanding the language, feel free to interrupt me. I'll repeat the entire thing again. It is totally fine with me. Clear? Now, acha, one more thing that I really require from you people is to talk. All right. And it doesn't matter if it is this session or the sessions after that. We only learn through discussion, a lot of discussion. Okay. So I want you people to talk as much as you want on the things that you want to talk about, because photography is actually just, communication. There are five things that come into communication. One is what I'm doing right now, talking, audio. And you also see this, right? This is a video that you see in front of you. With that, added to that, is basically if I hold still, for example, there is a drawing there, okay, and then the photo that you see, the sofa is not moving. If you see a still image, it is a photograph. If it is moving, it is a video. If you can hear voices, audio. If you can see something that is hand drawn, it is a drawing. And then we have definitely, with photo, audio, drawing, we have video as well, and this contributes, this total in totality, it contributes to the communication channels other than talking. Take care.
अभी इसके अंदर when you come to basically talk about photography, I want to know from all of you what do you think photography is, and then we are going to discuss a little bit on photography. Okay, so feel free, talk as much as you want. What do you think photography is? Hey, please just talk, man. Alright, don't worry about it. नो हाँ चलो गौरी, थैंक यू सो मच गौरी, मेरे को ऐसा लग रहा था अभी पूरा साइलेंस रहेगा किसी को I'm not sure, but यू डोंट हैव yeah. टू बी. For me, I think it's depicting stories through photo and videos, our thoughts, our emotions. Lovely, that is lovely. I totally agree. I agree 100%. Anybody else wants to give it a go? Basant, you want to try? Abhishek, you want to try, man? Shagufta? For her, photos are a way to tell stories, a way to depict story. Any other thing coming to mind? Yes, Achu? Capture moments. So, हाँ मेमोरी कैप्चर हाँ. या फिर एक याद बनाने के लिए किसी भी मूवमेंट को एक पर्सपेक्टिव से किसी को बताने के लिए आर्ट फॉर्म दैट सिंपली वे वी कैन कन्वे इमोशन टू समवन एल्स विदाउट एनी मतलब वर्ड्स. Lovely, yaar. That is also great. We can convey our emotion because photography is worth 1,000 words. 100% agreed. Yes, Ashu, you can go on. So Captain, capture moments. Ah, lovely. That is amazing. I 100% agree, and I know why she's like, where we will come with that point later on. But yes, capturing moments 100%. So because I didn't want to speak because You know. you have taught me more. Yeah, I do agree. But you can speak, Ashu, not an issue. I'll cover the concept. Don't worry about it. Yes, Captain. Alright, acha. Shagufta says that an art to show your thoughts and find beauty in nature. Very true. I 100% agree. All of your answers are correct. 100% correct. Now, if I go to basically give you one definition of photography, photography comes into a technical definition also, that light goes into the camera and makes an image. I agree. But if you try to understand photography, why do we do photography? Because things happen. All right, you all have amazing moments in your brain that you want to capture, or you have stories to tell कि ये ना ये ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था, something happened. Yeah, yes Ashu, like Prism, I can agree, yes. Now the thing is that when you want to tell the stories now, sometimes the stories take form of words, and sometimes those words may or may not be enough. For example, one of my favorite photos is of my dad's retirement. So my dad is basically signing the last date, last signature of his career, and he's standing in a government office. There is a table, and he's signing. And I took a photo of that. That's it. Okay, I have a photo, a simple photo with beautiful light, telling the story. That photo means to me more than anything else, or all the other photos that I have taken so far. That photo, one photo, means a lot to me personally. Okay, if I talk about what is photography, photography is telling stories through photos. Now, what is the difference between, like for example, if I tell you okay, that is the definition of photography, so the simple question is, then why to learn photography? If I can just tell the photo, why to learn photography at all? Now, I want to just lay this foundation there that this is a university grade course. Okay, so what I'm going to teach you is going to be viable when you go for a university, when you go for a job, when you go for becoming a photographer, or if you just want to click something for the sake of it. Okay, here specifically, if we want to take pictures now, we just don't want to take pictures. We want to take amazing pictures. We want to take great pictures. So some of you might have joined in for creating amazing compositions. Some of you might have joined in for basically, getting to know how the camera works. All right. If I sum up everything, then the definition of photography can be said that yes, it is storytelling, but what makes photos great? There are two things that makes photography great or taking photos great. The first one is that when you take a picture now,
take something rare, a rare moment. Okay, for my example, my dad retiring, that is a rare moment. Other than that, चंद्रयान सबको पता है, we basically landed on the moon, yes. ठीक है, ये तुम लोग बात कर सकते हो, ठीक है, प्लीज़ डल मत करो, yes. उसके फोटो सबने देखे, we all have seen that photos of the चंद्रयान landing, yeah. अब मेरे को एक बात बताओ, were those beautiful photos? नहीं, they were photo of basically the moon and a vehicle landing on it. Have we never ever seen photos like that? No. We have seen much better photos already. हमने मार्शियन मूवी देखी है, इंटरस्टेलर देखी है, ठीक है, इससे पहले जब मून पे लैंडिंग हुई है हमने वो सब देखा है. सो इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी न्यू टू अस. तो ये फ़ोटो में इसके अंदर ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था? चंद्रयान के लिए इम्पोर्टेंट ये था कि हमने किया था वो. ऑलराइट, वर्ल्ड कप बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत बार जीता है, बट धोनी का जो लास्ट 6 है और वो जो फोटो है ना, वो रेयर है हमारे लिए. जो भी चीज़, जो भी इवेंट रेयर होता है, उसके जब आप फ़ोटो लेते हो वो अपने आप अच्छे फ़ोटोज़ बन जाते हैं. एंड डेफिनेटली अगर आप फ़ोटो अच्छे से लो तो और भी अच्छी चीज़ है. अभी रिसेंटली एक वो वीडियो क्लिप आया था जिसके ऊपर बेसिकली देयर वाज दिस गर्ल सिटिंग, एन एस्ट्रॉयड ऊपर से गया था ग्रीन कलर का, एंड दैट वेंट वायरल बिकॉज इट इज़ अ वेरी रेयर एक्टिविटी. अब प्रॉब्लम ये है कि हमें हर दिन ना रेयर फोटोज़ नहीं मिलता, ठीक है. हर दिन एक रेयर इवेंट नहीं होने वाला है, हर दिन कोई रिटायर नहीं होगा, कोई मून पे लैंड नहीं करेगा, और अगर बार बार वो मून पे लैंड करेगा तो फिर वो रेयर कहाँ से रहा, ठीक है. सो रेयर थिंग बाय डेफिनेशन आर द थिंग्स दैट डोंट हैपन एवरी डे. सो वॉट वी लर्न, ओके, फर्स्ट वे इज़ टू टेक फोटोज़ इन अ वे विच इज़ वेरी रेयर. The second way is to take photos in a way that nobody has ever seen before. It is a normal condition, it is a normal situation, but the way you are taking photos, you're taking it in a way that is just exemplary, that is just amazing. You are showing a unique side, and that is when Abhishek said that it is different perspective, you know, you are giving new perspective. I think Gauri said that, yeah, but you are giving a new अच्छा, you said okay, sorry man, you said I accept, ठीक है. He said कि you give a new perspective, you need give a new POV. New POV का मतलब क्या है? Let's just say the entire world is looking at the world from this eye level. You gave an eye level that is from this angle or this angle. That is a new POV. You show something in a different mood, in a different theme, in a different vibe. You have a story in you that is unique, that is rare, and you try to show it to the world. That is why we do photography. Okay, clear everybody? Understood? So there are two things that make photos amazing. Clear, bro? One is photos must be rare. Okay, events must be rare. That is one. The second is you take photos in such a way that they become rare. So it could be a child crying, but the way you have taken it, you captured all the emotion, and that is enough. That is enough. Yeah. Abhi, everyone, that is basically the definition of photography. All right. Now, when I talk about it, एक second, वो AC थोड़ा ऊपर करने दो. Yes. When we talk about it, photography is made of 4 parts. ठीक है? कितने parts? 4 parts. And we'll have a discussion on this. You tell me, what do you see in front of you right now? Right now, what do you see? A branch and sun is अच्छा, sun yes. is You're sitting in front of a window window. branch है and nothing है. Your voice is echoing a lot for some reason, so I cannot get you. But can you please type, bro? I would love to hear your opinion, though. Is it okay if you type? Gauri, yes, please go on. Gauri, in this frame, okay, let's trim it down. In this frame, what do you see? What do you see when you look in this frame? You and the whiteboard behind you.
Okay, the whiteboard behind me, the camera basically, a person sitting here, a drawing here maybe, and a sofa. Yeah? Uh-huh. Abhi, if I tell you who is this, what will you say? Now, given that you people have been attending workshops already, but who is this? A person who is taught me is something that's give me unique way to handle the world. Wow, that is amazing. अभी ये जो हम लोग बात करते हैं ना, when we learn photography, this is storytelling. But if I break down storytelling into different aspects, this this is a subject, okay? And whatever you see in the back is the background. Clear? Abhi, photos are made of subjects and backgrounds. Clear? That is what photos are basically. If you change the subject and if you change the background, for example, Abhishek was saying that he can see the sun and he can see the branch. Now let's just assume that behind me, let's just change the wall, okay? And let's have something. Let's just move this here, okay? And let's have a beautiful window in the back. Abhi suddenly my entire vibe has changed. Why? Because the background changed. The subject was the same, but the background changed. Yeah? अभी लेट्स जस्ट से वी चेंज द सब्जेक्ट, मेरी जगह यहाँ पे कटरीना कैफ को ला के बिठा दो, पूरा फोटो बदल जाएगा, पूरा मूड बदल जाएगा. या वॉट इज हैपनिंग इज योर फोटोज ना, व्हेन यू थिंक अबाउट इट, योर फोटोज आर मेड ऑफ सम एलिमेंट्स. दोज एलिमेंट्स आर योर सब्जेक्ट, anything that goes beyond in the back is a background, anything that comes between this camera and me is a foreground. Your photos are made of elements like that, okay? Your foreground, subject and background. Abhi, when you change it, okay, you change it in different arrangements and that is called the composition. तो ये लोग जो हम लोग बोलते रहते हैं ना, the composition of the photo, and the photo is composed in such a way, it is nothing but arrangement of the photo. That is what it is, okay? Now when you have your photo, okay, and when you are arranging it, let's think the best scenario about us. ठीक है, ये पहला लेग है फोटोग्राफी का. द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट पिलर ऑफ फोटोग्राफी इज कॉम्पोजिशन. चीज़ें कैसे अरेंज होती है, हाउ आर थिंग्स अरेंज्ड. राइट नाउ लेट्स जस्ट से कहीं पे चलते हैं, ठीक है, पार्टी करने कहीं पे चलते हैं, लेट्स गो टू कसोल एंड वी ऑल आर देयर. ओके, हम लोग कसोल गए हुए हैं, बहुत अच्छा वाइब है, बहुत अच्छी लाइफ है, सब मज़ा आ रहा है. ठीक है, नाउ वी सेट कि हमको पार्टी करनी है, ये सॉरी हमको फ़ोटो लेना है, क्योंकि फ़ोटोग्राफी का कोर्स है, पार्टी बाद में करते हैं. लेट्स जैसे हमने बोला कि हमको फ़ोटो लेना है. ठीक है, द सन इज़ सेटिंग, हम लोग पहाड़ पे खड़े हुए हैं, इट इज़ 7:30 एट नाइट. ठीक है, द सन इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ ऑरेंज लाइट एवरीवेयर एंड वी आर अबाउट टू टेक अ पिक्चर. बट होता ये है कि क्योंकि हम लोग बेसिकली ट्रैवल करने गए वहाँ पे, और राइट, एंड कसोल है, हम थोड़ा अपने जोन में ही चल रहे हैं, एंड वी हैव फॉरगॉटन आवर कैमराज एंड आवर फोन्स. यू टेल मी, कैन वी टेक पिक्चर्स पीपल, येस और नो? No. No? Alright, thank you Gauri for saying something. This is a little more silent that I require my lectures, but thank you so much for being so vocal. Yes, we cannot take pictures. Here अगर आपका composition दुनिया का सबसे अच्छा composition भी होगा, आप फोटो नहीं ले पाओगे. The reason is ये नहीं है ये. What is this? This is a camera. Okay? कैमरा जब तक ना हो आप फ़ोटो नहीं ले सकते. फिर वो फ़ोन का कैमरा हो या कैमरा हो, ऑलराइट, प्रोफेशनल कैमरा हो, हाइब्रिड हो, डजेंट मैटर, DSLR हो, ये पीछे जो है ये मिररलेस है, डजेंट मैटर, यू कैन नॉट टेक पिक्चर्स. ऑलराइट, सो दैट इज़ वाई लर्निंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड लेग ऑफ फोटोग्राफी इज़ द कैमरा इटसेल्फ. ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग इज़ योर कॉम्पोजिशन, कि कैमरा के अंदर क्या आ रहा है, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट. The second part is the camera itself. Alright, how do you control it? And we will learn in detail how to control it. But yeah, the second part is that. Alright, now there is a third part as well. Let's just say we go back. हम लोग वापस गए, वापस जाके हम कैमरा लेके आए. ठीक है, अब याद रखना हम पहाड़ पे हैं. You tell me, can we still take good pictures के नहीं? कि जैसे पहले आने वाले थे 7:30 के टाइम पे वैसे फ़ोटोज़ नहीं आएंगे.
व्हाट डू यू थिंक? नो, उसमें चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि लाइटिंग चेंज हो गई और जो कैमरा के अंदर लाइटिंग है वो चेंज कर देगा और डार्कर पार्ट ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा. परफेक्ट. द थर्ड पार्ट ऑफ फोटोग्राफी इज लाइट. अगर लाइट ही नहीं रहेगी आप फोटो कैसे लोगे? इट विल नॉट बी अ गुड लुकिंग फोटो एट ऑल. देर विल बी ग्रेन, देर विल बी नॉइज, द एलिमेंट्स विल नॉट शो. एंड इवन जब हम लोग डार्क फोटोग्राफी बोलते हैं, जैसे अभी अभिषेक के आप डीपी के अंदर या फोटो के अंदर देख सकते हो, इट इज़ अ डार्क बैकग्राउंड बट स्टिल ही इज़ करेक्टली विजिबल. If you have a photo where things are not visible, it does not make any sense. It will not be a good photo. All right. So the third leg of photography is light itself. पहला composition. All right. दूसरा camera. Third light. And the fourth है ना, वो मैं आपको नहीं सिखा सकता. वो मैं क्या, वो दुनिया में कोई भी आपको नहीं सिखा सकता. Because the fourth one is something that puts life into the photo, and that has to be something related to or derived by you. For example, let me put it into perspective. Okay, मुझे बताओ अभी ये वीडियो यूट्यूब पे जाने वाला है, क्या ये वायरल होगा? येस और नो? और मेरा दिल रखने के लिए आंसर मत देना. क्या ये वायरल होगा? येस या नो? Not today because the quality of putting large cameras are not good, but the content is good. थैंक यू सो मच ब्रो If फॉर we सेइंग have द to. कंटेंट इज़ गुड. बट मैं सच्ची बताऊँ, ये फिर भी वायरल नहीं जाने वाला. ये वायरल नहीं जाएगा क्योंकि मेरे जैसे 1000 टीचर हैं, ठीक है, और सबके वीडियो यूट्यूब पे है. अब पता है क्या होगा? अब मेरे जैसा टीचर जो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, लेट्स जस्ट से कि मेरी सिस्टर आई, ठीक है, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मैं तुम लोग को बहुत सीरियसली पढ़ा रहा हूँ. मेरी सिस्टर आई, उसके हाथ में एक स्ट्रॉबेरी केक है, ठीक है, रास्पबेरी वाला, और उसने ना ऐसा फेंक के मारा, ठीक है, और अभी लेक्चर में, चलते लेक्चर में तुमको यहाँ से केक उड़ता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, और वो मेरे ऊपर लगा और पूरा ड्रिप किया नीचे, ठीक है. बसंत इज़ वेरी हैप्पी. ठीक है. सो अभी ये केक मेरे पूरे चेहरे पे ड्रिप कर रहा है, ठीक है. यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी लग गया है, यहाँ पे रास्पबेरी है, ठीक है. कपड़ा, ये स्टोइसिज्म जो इतने सालों से मैं संभाल के रखा हूँ, ये अभी जो माउंटेन है वो ऐसे पिंक पिंक दिखाई दे रहा है. अब मुझे बताओ, अगर तुम में से किसी अमेजिंग इंसान ने इसका वीडियो रिकॉर्डिंग या इसका रील बना के डाल दिया, क्या अब ये रील वायरल जाएगा? What do you think? Yes. Yes, Yes, it's a dramatic situation. It is a little dramatic and little unusual. The reason is यहाँ पे क्रिएट हुई है एक छोटी सी चीज़ जिसका नाम है मोमेंट, ठीक है. इसे मोमेंट कहते हैं, MOMENT, मूवमेंट नहीं, मोमेंट, ठीक है. जब आप ऐसे मोमेंट कैप्चर करते हो ना, जो हो सकता है रेयर हो सकता है रेयर ना हो, लेकिन जब ये मोमेंट होते हैं, कोई बच्चा हंस रहा है, ठीक है, कोई ऐसा बूढ़ा इंसान हंस रहा है जिसके दांत नहीं है और वो स्माइल कर रहा है, आपने फ़ोटो ले लिया. कोई छोटा सा बच्चा रो रहा है, ठीक है, एक लेजे से एक पोर्शा खड़ी हुई है और एक छोटा सा बच्चा उसको देखते देखते जा रहा है, दैट इज़ अ मोमेंट. कोई चल रहा था, अचानक से गिर गया, आपने उसको गिरते हुए फ्रीज़ किया है हवा में, दैट इज़ अ मोमेंट, ठीक है. ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, लेकिन इसे एंटीसिपेट करते हैं. एंटीसिपेट कैसे करते हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स जस्ट से कि मैं मुंबई से हूँ, जहाँ से यहाँ पे ना जो गांव जाने वाली ट्रेन होती है या जो कहीं और किसी बड़े शहर में जाने वाली ट्रेन होती है, वो दादर से जाती है. यहाँ पे दादर करके एक स्टेशन है, ठीक है. लेट्स जस्ट से कि मैं दादर स्टेशन पे गया, ठीक है, और मैं दादर स्टेशन पे जाके आई एम सिटिंग एट द दादर स्टेशन, आई एम ऑब्जर्विंग. And when I'm observing, I see that there are two people, father and the son, and the son looks like, he has settled in Mumbai, all right, and he's sitting, and his father, maybe he is basically a very old farmer or somebody, so he has a feta, and he has old attire, and he is sitting with him, और उनका एक वो जो पुराना वाला बैग नहीं होता है वो है, और कुछ बोरियों में कपड़े बांधे हुए हैं. अब ऐसा हो सकता है दैट द फादर केम टू स्टे विथ हिज सन, और अभी उनको वापस जाना पड़ रहा है, फॉर एनी रीज़न ही हैज़ टू गो बैक, ठीक है. अभी यू आर सिटिंग देयर एंड यू थिंक कि ये सब्जेक्ट है ना ऐसा है, अगर ट्रेन को मैं रूल ऑफ थर्ड्स पे, व्हेन वी रीच कॉम्पोजिशन आई टीच यू व्हाट इट इज़, बट अगर मैं ट्रेन को रूल ऑफ थर्ड्स पे रखूँ
और इसको ऐसे फ्रेम करूँ और लाइट पीछे से आ रही है, वो सनलाइट जो नहीं वो चेहरे पे आपके एकदम ऐसा रिम लाइट बनाती है, आउटलाइन बनाती है, दैट गोल्डन लाइट इज़ कमिंग इन, जो हल्की सी ट्रेन पे भी पड़ेगी। अगर मैं उसको वैसे फ्रेम करूँ, वैसे कंपोज करूँ, तो ये फ़ोटो बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर क्या किया आपने, अपने कैमरे को सेट किया, मे बी ट्राईपॉड पे सेट किया, मे बी आप कैमरा लेके बैठ गए और आप वहाँ पे बैठे रहे, ठीक है। उसके बाद में वो ट्रेन आई। ट्रेन आते टाइम पे वो जो बच्चा है, मे बी उसकी आंखों में आंसू है, वो रो रहा है, ठीक है। उसने अपने फादर का सामान उठाया, उसके फादर ट्रेन में चढ़े, उनका जो सामान है, ठीक है, वो उन्होंने मे भी हो सकता है लेस जैसे उनके पास टिकट नहीं है, मुझे मालूम है मैं थोड़ा ड्रामेटिक कर रहा हूँ, लेकिन लेस जैसे उनका सामान बाहर दरवाजे पे ही है, वो दरवाजे पे ही खड़े हुए हैं, उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया, ठीक है। आपने इस मोमेंट पे फ़ोटो खींचा है, राइट। या वो उनसे हाथ मिला रहा है, बच्चा नहीं चाहता कि उसके फादर जाए या वाइस वर्सा, एंड ट्रेन चलने लगी और उनका हाथ एक दूसरे के हाथ में ही है, ठीक है। आपने फ़ोटो लिया, उसके बाद वो बच्चा थोड़ा भागने लगा, फादर उसको बाय बाय कर रहे, वो हाथ वेव कर रहे, आपने ये फ़ोटो लिया। आपने एक ही जगह पे 3 फ़ोटो लिए हो, ठीक है, एंटिसिपेट करके, क्योंकि ये मोमेंट ज़रूरी है। ये मोमेंट आपको रोज़ की लाइफ में नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो ये मोमेंट एंटिसिपेशन से आता है और वो एंटिसिपेशन आती है प्रैक्टिस से। तो जस्ट टू रिकैप, हमें फ़ोटो दो तरह से फ़ोटो इंटरेस्टिंग बनते हैं। एक, जब फ़ोटो अपने आप में बहुत ज़्यादा रेयर हो। अब हमें हर दिन रेयर मोमेंट नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो रेयर है, कभी कभी मिलते हैं इसलिए रेयर है, बाय द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड। इसलिए हमें फ़ोटो ऐसे तरीके से लेना है कि वो रेयर हो जाए। उसमें आप कॉम्पोजिशन रेयर डालिए, लाइटिंग एकदम यूनिक डालिए, उसको एकदम अलग तरीके से खींचिए, उसमें पीओवी डालिए और एक ऐसा मोमेंट कैप्चर कीजिए कि उस फ़ोटो में मज़ा आ जाए। अब जिस हिसाब से हमारी ये वर्कशॉप जाने वाली है, इसके अंदर होगा ये कि पहला जो इसके बाद का लेक्चर है, ठीक है, ये वर्कशॉप में 8 लेक्चर है। आखिरी वाला लेक्चर हम बेसिकली बात करके, डाउट सॉल्व करके, वो इंटरेस्टिंग एक्सपेक्ट क्रिएटिविटी का एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट लेक्चर आफ्टर दिस विल बी अबाउट कॉम्पोजिशन। सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन सीखेंगे। अनफॉर्चुनेटली फ़ोटोग्राफी में बहुत कम जगह कॉम्पोजिशन लोग सिखाते हैं या ढंग से सीखने मिलता है। सो द फर्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट कॉम्पोजिशन, ताकि आपका जो बाकी का पूरा महीना है ना, आप वो प्रैक्टिस करते रहो, ताकि मार्च के एंड में आपकी फ़ोटोग्राफी, इवन इफ़ यू आर डूइंग विद अ फ़ोन, इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद का लेक्चर रहेगा लेंसेज के ऊपर, क्योंकि कैमरा के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लेंस, एक होता है कैमरा बॉडी। जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये लेंस है, ठीक है। इसके पीछे, ओके, माय फिंगर इज़ नॉट एबल टू गो देयर, बट वो जो पीछे दिख रहा है ना, वो कैमरा बॉडी है, ठीक है। लेंस को आपने एक बार समझ लिया तो आपको समझ में आएगा कि स्टोरी टेलिंग में जूम इन जूम आउट खाली चीज़ों को नज़दीक लाने के लिए नहीं होता है उसका और कोई रीज़न होता है। वाइड एंगल क्यों शूट किया जाता है, टेलीफोटो क्यों शूट किया जाता है, एंड विल लर्न ऑल अबाउट लेंसेज। आफ्टर वी आर डन विद लेंसेज, विल गो एंड एक्चुअली लर्न कैमरा कैसे यूज़ करते हैं। अब मुझे पता है आप में से बहुत लोगों के पास में कैमरा नहीं होगा, डोंट वरी। मैंने मेरा खुद का कैमरा मेरा एडवांस कोर्स होने के 6 महीने बाद ख़रीदा था, और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर कौन सा कैमरा लूँ, ठीक है। कैमरा जो है ना वो एक व्हीकल की तरह है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभिषेक आप कहाँ से है? ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश ना। वहाँ पे मेरे हिसाब से आप कौन सी बाइक चलाते हो या स्कूटी चलाते हो? नॉर्मल एक एक्टिवा या टाइप की चलाते होगे? एक्टिवा है, हाँ। एक्टिवा है। अगर आप हिमालय पे जा रहे हो तो क्या आप एक्टिवा लेके जाओगे? नो वे। नो वे, राइट। वहाँ पे बुलेट या हिमालयन चाहिए। वैसे ही स्ट्रीट फोटोग्राफर के लिए कैमरा रिक्वायरमेंट अलग होता है, फैशन फोटोग्राफर के लिए कैमरा रिक्वायरमेंट अलग होता है, वेडिंग फोटोग्राफर के लिए कैमरा रिक्वायरमेंट अलग होता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए कैमरा रिक्वायरमेंट अलग होता है। मैं बाय नेचर एक स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ, ठीक है। तो मेरा जो कैमरा है ना वो छोटा सा है, ताकि मैं, अगर ये मुश्किल से 1.2 kgs और लेंस मिला के 1.6 kgs का कैमरा है, तो अगर मैं पूरा दिन उसको लेके घूम रहा हूँ, नो मैटर वेयर, मेरा हाथ नहीं दुखेगा। लेकिन अगर आप 5D Mark 4 लेके घूमते हो, ठीक है, अगर आप बहुत हैवी कैमरा लेके घूमते हो, मेरे दोस्त है जो साथ में आते हैं, लेकिन वो 1 घंटे के बाद बेचारा थक जा रहा है, क्योंकि उसका कैमरा ही इतना हैवी है। मेरे कैमरा के अंदर साइलेंट शटर का ऑप्शन है। बोलने का मतलब ये कि अगर मैं कैंडिड फ़ोटो शूट कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी आवाज़ सुने, ताकि वो मोमेंट बिखरे ना। इसके लिए मेरे इसके अंदर वो कस्टम बटन है, मैं क्लिक कर दूंगा तो शूटिंग साइलेंट हो जाएगी, मैं मेरी फ़ोटोग्राफी कर पाऊँगा।
सो हर कैमरा हर ब्रांड के हिसाब से चेंज होता है. आपको कोई भी ये भी नहीं बता सकता कि आपको कौन सा कैमरा ख़रीदना चाहिए. मुझे पता है यूट्यूब के ऊपर बहुत लोग बोलते हैं अरे ये ख़रीद लो वो ख़रीद लो बिकॉज ऑफ स्पॉन्सर्स और दे प्रीफर दैट कैमरा. आपका कैमरा आपकी फ़ोटोग्राफी स्टाइल समझने के बाद में ख़रीदा जाता है, ठीक है. और इस कोर्स के अंदर जो इसके बाद के 2 लेक्चर रहेंगे लेंस के बाद के, उसके अंदर हम कैमरा सीखना सीखेंगे. कौन सा कैमरा आप इसके बाद चला सकते हो? दुनिया का कोई भी कैमरा. बिकॉज जैसे गाड़ी चलती है ना एक रूल पे, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, कैमरा चलता है अपर्चर, शटर स्पीड और ISO पे, ठीक है. अगर आपको वो समझ में आ गया फिर आप पॉइंट एंड शूट ले, DSLR ले, मिररलेस ले, मीडियम फॉर्मेट कैमरा ले लो, हैसलब्लेड का उठा लो. आपको पता है कि कैमरा अंदर से कैसे काम करता है, ठीक है. एंड दैट विल रियली रियली हेल्प यू. ऑलराइट, इसके अंदर अब कैमरा हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, अगला लेग क्या था? लाइटिंग. अब हम लाइटिंग पे जाएंगे. स्टूडियो लाइटिंग क्या होती है, कैसे शूट करते हैं, उसके बाद में कौन सी लाइट आपको ब्यूटीफुल बनाएगी, कौन सी लाइट आपको एक अलग वाइब में दिखाएगी. और उसके बाद में विल गो फॉर एडिटिंग, विल गो फॉर कलर थियरी एंड विल अंडरस्टैंड इट इन टोटलिटी वेयर you can actually take pictures after this. This is the way we are going to process with the course. Clear everybody? समझा? Alright. अभी इसके अंदर है ना कुछ FAQs है जो मैं आंसर कर देता हूँ. उसके बाद हम लोग एक थोड़ी हैवी एक्सरसाइज करने वाला है. मैं वो एक्सरसाइज अभी नहीं दे रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा बचा हुआ रहे. सो हम लोगों को 2-3 FAQ आते हैं. पहला, क्या मेरे पास कैमरा होना ज़रूरी है? नहीं, ठीक है. बैग बोरो एंड स्टील करो, ख़रीदो मत, क्योंकि कैमरा के अंदर ऐसा होता है अगर आपने कैमरा लिया ना उस हिसाब से लेंस होता है, लेंस की बॉडीज़ बनती है. फॉर एग्जांपल लेंस के कलेक्शंस बनते हैं. तो अगर आपने कैनन का कैमरा ले लिया तो आप कैनन का एक लेंस लोगे, फिर और थोड़ा आप रिसर्च करके दूसरा लेंस लोगे क्योंकि आपको अलग टाइप की फ़ोटोग्राफी करनी है, फिर एक मैक्रो लेंस लोगे. अब प्रॉब्लम ये है कि उसके 3 लेंस खरीद लिए, अब सोनी पे शिफ्ट नहीं कर पाओगे अब निकॉन पे शिफ्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है. सो व्हाट यू डू इज़ फर्स्ट यू लर्न फोटोग्राफी, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ अ कैमरा, देन यू गो. मैं विजय सेल्स में जाके कैमरास ट्राई करता था, ठीक है. बिफोर बाइंग द कैमरा मैं अच्छी देर तक ट्राई करता था और फिर मुझे समझ में आया कि कौन सा कैमरा लेना चाहिए. उसके बाद मैंने कैमरा ख़रीदा. ओके, तुम्हारे लिए भी सेम है. फ़ोन के अंदर बहुत सारे कैमरास है, एप्लीकेशंस है जो आपको बेसिकली सिमुलेशन देते हैं, ठीक है. वो 100% कैमरा को मिमिक नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ब्लैक मैजिक है या मोमेंट है, यू कैन ट्राई योर हैंड्स ऑन इट. उसके बाद कैमरा ख़रीदना, ठीक है. तो पहला FAQ, क्या ये अटेंड करने के लिए, क्या ये करने के लिए कैमरा चाहिए? नहीं चाहिए भाई, टेंशन मत लो. क्या मैं तुम लोग को कैमरा सिखाऊंगा? हाँ, ठीक है. आपको मैं पूरा बताऊंगा कैमरा कैसे यूज़ करना है, उसकी फ़िज़िक्स क्या है, लाइट की फ़िज़िक्स क्या है. वी विल लर्न दैट एंटायर थिंग. बट आपको इस कोर्स के लिए कैमरा की ज़रूरत नहीं है और आपको फ़ोटोशॉप की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. The software that I use are Procreate, Affinity and Photoshop. So if you want to edit something, Photoshop is not compulsory. Okay, we will see Photoshop. But if you do not have Photoshop, तो अक्सर जब एडिटिंग का लेक्चर आता है ना तो इंसान थोड़ा ऐसा होता है कि भैया मेरे पास तो Photoshop नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ज़रूरत नहीं है. लेकिन हम समझेंगे कि कैसे करना है, सीखेंगे कि क्या करना है. क्लियर? एंड वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट Lightroom, ठीक है. अब सो हमारा बेसिकली our understanding of why we do photography and why we learn photography is done. Elements of fundamental photography is done as well. इसके बाद में FAQs अगर किसी और को हो बिंदास पूछ लेना, आई एम हेयर टू आंसर. इसके साथ में अब एक चीज़ है कि फ़ोटोग्राफी ना, हो सकता है आपका ये डेमो लेक्चर आखिरी लेक्चर हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बाद में जब भी फ़ोटोग्राफी करो, ठीक है, वो आपकी फ़ोटोग्राफी इम्प्रूव करें. उसको करने के लिए हम एक चीज़ सीखेंगे जो बहुत बेसिक है, ठीक है. आई वॉन्ट यू टू टेल मी प्रैक्टिस क्या होगी फ़ोटोग्राफी में. फ़ोटोग्राफी में प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? एनीबडी, एनी आंसर्स? अगर मुझे फ़ोटोग्राफी प्रैक्टिस करनी है इम्प्रूव करने के लिए तो मुझे कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए? फ़ोटोग्राफी में प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? To go out and capture a moment daily basis and write down what we can improve and what we can change. लवली यार. अभिषेक, आई हैव अ ग्रुप विच इज़ फ्री, टोटली फ्री. उसका नाम है फोटोग्राफी जर्नलिंग, ठीक है. उसके अंदर हम लोग फ़ोटो लेते हैं एंड देन वी डिस्कस कि व्हाट कुड हैव बीन बेटर,
हम लोग को कैसे फ़ोटो लेना चाहिए, you do text me, I'll add you to that group because I think you can be somebody who will enjoy that. Clear? अभी उसके साथ में फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट में भी, यस फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट, बट जब मैं फ़ोटोग्राफी सीख रहा था ना तो मुझे एक प्रॉब्लम आया था कि मैं रोज़ क्या करता था, रोज़ फ़ोटो लेता था। एंड उस टाइम पे ना फेसबुक पे ग्रुप्स हुआ करते थे और फोटोग्राफर्स आर दी वर्स्ट क्रिटिक्स। फोटोग्राफर्स बहुत ख़तरनाक क्रिटिक करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं फेसबुक पे अपने फ़ोटो डालता था ग्रुप के अंदर और उन लोगों को बोलता था कि मुझे क्रिटिक करो, ठीक है। उन लोगों ने क्रिटिक करने का कि तुम्हारी शैडो सही नहीं है, हाईलाइट सही नहीं है, कॉम्पोजिशन सही नहीं है, प्लेसमेंट सही नहीं है, स्टोरी टेलिंग सही नहीं है। और फिर मैं उनसे पूछता था कि प्रैक्टिस कैसे करूँ, ओके। तो मुझे बोलते थे प्रैक्टिस करो। अरे बट भैया प्रैक्टिस का मतलब क्या, मैं रोज़ फ़ोटो तो ले रहा हूँ और इम्प्रूवमेंट मार्जिनली आ रहा है, प्रैक्टिस का मतलब क्या। और फिर एक चीज़ समझ आई और ख़ुद से ही समझ आई कि जब आप फोटोग्राफी में बोलते हो ना प्रैक्टिस, तो फोटोग्राफी में प्रैक्टिस और दूसरी फील्ड में प्रैक्टिस में थोड़ा फ़र्क है। दूसरी फील्ड के अंदर प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिपीट करना, जो फोटोग्राफी के अंदर भी आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक सर्कल बनाना है, ओके, और मैं बोलूँ मुझे फोटोग्राफी के अंदर मुझे रोज़ सर्कल बनाना है, तो आपके हिसाब से मेरी प्रैक्टिस क्या रहेगी। अगर मुझे फ्री हैंड एक सर्कल बनाना है, परफेक्ट सर्कल चाहिए, तो अगर मुझे वो प्रैक्टिस करना है तो मुझे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। Simply repeat daily basis. रिपीटेड ऑन डेली बेसिस। आप रोज़ एक पेंसिल लोगे, रोज़ सर्कल बनाओगे, आपके हैंड के रिफ्लेक्सेस ट्रेन होगे, ये थंब थोड़ा बेटर तरीके से घूमेगा, ये फिंगर थोड़ी बेटर तरीके से टेक्निकल लेवल पे फंक्शन करेगी और आप बेटर सर्कल बना पाओगे, करेक्ट। फोटोग्राफी ऐसे काम नहीं करती, ठीक है, ये समझ लो। फोटोग्राफी के अंदर अगर आप रोज़ जाते हो, एक फ़ोटो क्लिक करते हो, क्लिक करते हो, क्लिक करते हो, आप पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है, बिकॉज फोटोग्राफी इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट फील्ड्स टू बी इन। फोटोग्राफी दुनिया की सबसे आसान फील्ड है होने के लिए, क्योंकि आपने पॉइंट किया, फ़ोटो लिया, ख़त्म किया, इतनी ही है फोटोग्राफी, ओके। लेकिन फ़ोटोग्राफी सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि फ़ोटो लेना हर किसी को आता है, अच्छे फ़ोटो लेना हर किसी को नहीं आता। और उसका रीज़न ये है कि फ़ोटोग्राफी में प्रैक्टिस ना थोड़े अलग लेवल पे होती है। मैं बताता हूँ कैसे। लेट्स जस्ट से कि अभी हम लोग थोड़ा सा इमेजिनरी जाएंगे, मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद में फिर हम लोग फोटोग्राफी पे वापस आएंगे, ठीक है। और ये इसके अंदर ना सब कंट्रीब्यूट करो, शगुफ्ता, गौरी, अभिषेक, बसंत। ऐसा समझो कि देयर इज़ अ टावर ऑफ कैंस, जैसे मेले में होता है ना, कप रखे हुए, फिर और कप रखे हुए, फिर और कप रखे हुए, और एक टावर है, ठीक है। इस टावर को आपको तोड़ना है। मुझे आप 4 लोग हो, मुझे 20 तरीके बताओ जिसमें आप ये टावर तोड़ सकते हो। सोचो, मिल के बताओ, कोई इशू नहीं है। फाउंडेशन को रिमूव कर दो। फाउंडेशन को रिमूव कर दो, चलो 19 मोर टू गो। यस बसंत। कुछ फेंक के मार दो। कुछ फेंक के मार दो, दैट इज़ वेरी गुड। एंड 18 बाकी है कुछ भैया। रैंडमली बीच में से। Earthquake. सॉरी, कैन यू गो अगेन। गौरी बोल रही थी कुछ रैंडमली बीच में से, आगे बोलो। आई थिंक गौरी शुड गो। गौरी आप बोल लो, देन अभिषेक विल गो, देन बसंत विल गो। नो लाइक कोई भी रैंडमली रोज के बीच में से भी कुछ निकाल देंगे तो वो गिर जाएगा। वाह, उसके बीच में से भी कुछ एक कप हटा दोगे तो गिर जाएगा। वेरी गुड आंसर्स। अभी 17 बचे हैं। मैं तुम लोग को परमिशन देता हूँ, लिख के परमिशन देता हूँ, क्रिएटिव बन जाओ, ठीक है। कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्टूडेंट था जिसने एक बार बोला था कि वो नहीं, वो हेयर ऑयल की ऐड आती है लंबे लंबे बाल वाले, तो बोला था कि सर ना उसको बोलना कि ऐसा बाल ऐसा करके मार तो वो कब गिर जाएगा। दूसरा एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर अमेरिका को बोल दो कि उसके नीचे ऑयल है, अमेरिका उसको तोड़ देगा। एक ने बोला था कि सर ऐसा समझो कि ड्रैगन उस पर फायर से अटैक कर रहा है, ठीक है। अब तुम लोग जो सोच सकते हो सोच लो और मुझे बताओ। 17 मोर टू गो। मिसाइल फेंक के मार दो। मिसाइल फेंक के मार दो, दैट इज़ अ गुड वन। 16 मोर टू गो। सोचो सोचो, सारे मिलके सोचो। Mistakenly कोई गिर रहा है। सॉरी, Mistakenly कोई गिर रहा है।
मिस्टेकली कोई गिर जाए उस पर, यस मिस्टेकनली कोई भी गिर सकता है. वेरी गुड. 15 मोर टू गो. Basant is typing something very heavily. No worries, we'll wait. So much crowded. Too much crowded इतना and क्राउड हो कि हम पुश ही करते हैं किसी इंसान को उस तरह. very good. And और 5 दो मुझे, चलो. फैन ऑन कर सकते हैं यदि वो कप्स हो तो. फैन ऑन कर सकते हो, उससे कप उड़ जाएगा. वेरी गुड. 4 मोर. सोचो. 4 मोर. ब्लो कर सकते हैं. उसको ब्लो कर सकते हैं. वेरी गुड. 3 मोर. उसके टॉप ऑफ पे कुछ गिरा भी सकते हैं ऊपर से. उस पर टॉप से कुछ गिरा सकते हैं. हम्म. कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. यस अभिषेक. टेबल को गिरा सकते हैं. टेबल को गिरा सकते हैं. बसंत से. एंड सोचो. अभी 6 मोर टू गो. चलो. सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो. रुकना नहीं है. तुम लोग को जो ये फील हो रही है ना, इच, ये जो सोचने नहीं जम रहा है, इसको क्रिएटिविटी बोलता है. ठीक है. सोचो, चलेगा. सोचो. कुछ भी बोलो. कुछ भी. पानी फेंक के गिरा दो उसको. जिससे तक खींच लिया उसके नीचे रखा होगा. उसके नीचे जो रखा था उसको खींच लिया कपड़े को. कर सकते हैं. ओके. थोड़ी सी आवाज़ ना मैचअप हो रही है. बट एक काम करते. गौरी यू गो, देन अभिषेक विल गो, देन बसंत, देन अगेन गौरी, अभिषेक, बसंत. सोचते रहो. 6 ही है. तुम लोग को 2-2 ट्राई में ख़त्म कर देने का. गौरी गो ऑन. हम बास्केटबॉल थ्रो करते हैं. बास्केटबॉल थ्रो कर सकते हैं. वेरी गुड. अभिषेक गो ऑन. Maybe a ball. तो बॉल हो गया. गौरी साइड बॉल ऑलरेडी. ball तो maybe I said someone, so someone fall on that. You can push someone and someone can fall on that. Agreed. Very good. All right. And what else? What else can happen? Chalo Basant, go on. How do you break up tower of cans? कोई साथ में खड़ा होगा उसको मार दें. कोई उसको साथ में लेके. खड़ा हो, उसको मार दे. वेरी गुड. अभी मेरे को और 3 चाहिए. ठीक है. तुम लोग ने जितने सोच सकते तो सोच लिया ना. अभी मुझे और 3 दो. सो आई वांट 1 फ्रॉम अभिषेक. कोई भी कुछ भी बोलो, चलेगा. आई वांट 1 फ्रॉम गौरी. आई वांट 1 फ्रॉम बसंत. I throw a slipper on that. You will throw slipper on that. That is a good one. Basant, go on, and then Gauri. And Achu, if you want to, how do you break a tower of cans? फुटबॉल बॉल से मार सकते हैं. Yeah, let the new people. Okay, let the new people answer. Cool. Yes, Basant. फुटबॉल बॉल से मार सकते. फुटबॉल से एकदम खींच के मैसी को बोल सकते मार दे उसको. राइट. ए हम लोगों का झगड़ा भी तो करा सकते हैं ना उस पे. यस गौरी. लास्ट वन. चलो गौरी. हाँ, वो जिस भी फाउंडेशन पे रखा गया है यदि उसको ही हटा दो तो. अच्छा, नीचे की ज़मीन ही हटानी है आपको. ठीक है. अच्छा, अब सुनो. मुझे एक चीज़ का सिंसियरली जवाब देना. विच वन. आपने 15 मेथड बोले. ठीक है. पहले वाले 5 इंटरेस्टिंग थे या बाद वाले 5 इंटरेस्टिंग थे? वर द फर्स्ट 5 इंटरेस्टिंग और द लास्ट 5 इंटरेस्टिंग? The last 5 because we have put mind on that. द लास्ट 5 बिकॉज यू पुट माइंड ऑन दैट. ये प्रैक्टिस है फोटोग्राफी की. फोटोग्राफी में आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो. अब आपका इसका आंसर बताता हूँ मैं. ठीक है. अभी ये फ़ोटो देखो और मुझे बताना कि व्हाट डू यू थिंक. ठीक है. सो आई विल शेयर माई स्क्रीन. आई थिंक माई स्क्रीन इज शेयरिंग. ठीक है. एंड आई विल जस्ट ओपन दिस हियर. ठीक है. अभी यहाँ पे इफ़ आई गो एंड क्लिक ऑन flowers. Okay. Hey, just one second, people.
यस, अभी आप लोग मुझे ये बताओगे, एवरीबडी कैन सी दिस फ्लावर, यस, एंड प्लीज कीप टॉकिंग बिकॉज आई कैन नॉट सी यू. एवरीबडी कैन सी दिस Oh, फ्लावर. Yes, Captain. yes. I want you Yes, people to yes. tell me 15 ways to shoot this flower. कैसे लोगे? अगर इस फ्लावर का फोटो लेना है, अपनी इमेजिनेशन रन करो और बताओ इसका फोटो कैसे लोगे. From the upside Close up में and फ्रॉम द टॉप एंगल. down ठीक side. है, 15. अच्छा एक सेकेंड, हाँ, एक एक करके जाते हैं. तो बसंत ने बोला फ्रॉम द टॉप एंगल, तो दैट इज वन गुड. 14 मोर टू गो. अभिषेक. From the downside and maybe from the tilted 45 angle and the 90 angle. So we लवली. can गो ऑन uh, प्लीज गो ऑन. maybe lake from the if this is in a lake, we can take from the underwater. Lovely, yaar. That is really good. So what you can do is you can take the picture from down below, from tilted, from 90 angle and even underwater, which is beautiful. चलो 4 तो इसने यहाँ पे ही हो गए. 10 तरीके बचे हैं, मुझे 10 और तरीके बताओ. A more closer shot. More closer to it. Nice. Gauri, what do you think? A wide angle. A wide angle photo. That is lovely. Nice. 7 more to go. सोचो. Captain, Yes, I, yes. I would prefer is that now I'm taking in an iPhone, this flower, and I think I would go more closer to the object to take to make it to make the subject more clearer Mm-hmm. and make the background Blurry. just focus on the subject only. Got you. 100% got you, and that is actually a very good idea. It will give you a kind of a macro shot, which is amazing, or it will give you a telephoto shot. Amazing. Cool. I Yeah. 100% agree. 100% agree, and it will look a beautiful photo. Yes, Captain. Cool. Chalo, 6 more ways. 6 more ways. सोचो, मुझे पता है तुम लोग को प्रॉब्लम होगी सोचने में. सोचो. From the tree tree जहाँ पे वो हो उसके ऊपर से बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल ले सकते हैं. From the tree, definitely you can take 5 more. maybe a perspective of someone person. Wow, lovely. POV. POV, lovely. That can be the thing. Yes, I agree 100%. And अभी कोई बी उसी पे वो कर रहे हो और someone was throwing something. there is a bee sitting on it. Lovely, that is good as well. And last one. Very good, by the way. एक आखिरी, बस आखिरी. What do you think? Last one. सोचो. चलेगा, सोचो, जितना सोच सकते हो सोचो. फिश के लेग से कोई फिश निकले और हम क्लिक कर लें उसी टाइम. Okay, that is good as well. Abhi, so now this is my practice of photography. So I went and I found a flower. I took one picture. Then somebody was saying ना कि सर इससे भी ले सकते हैं. तो अभी देखो, ठीक है? अभी you will basically look at, sorry, this is one photo. Okay, this is the same photo from another view. This is same photo. जिसने बोला ना थोड़ा POV जाके लेंगे. You can do this again. इसने अभिषेक ने बोला था you can take from down below. Alright, you can zoom on the pollen itself. You can take from above, top angle. This is what Vasant said in the beginning. Okay, then again a little movement added, a little, maybe a little faded.
Again, this is the same photo repeating. Black and white. Why not black and white? You can try that as well. उसके बाद में just one thing in focus on the rule of thirds. Again, through some POV. अभी वहाँ पे tree नहीं था तो I took through this photos. Alright. Again, another photo framed in front of the window. अभी ये मेरी प्रैक्टिस है, ठीक है. तो हम लोग गलती क्या करते हैं पता है, जब भी whenever we go and take pictures, हम लोग ऐसा फ़ोटो लेते हैं, क्लिक किया. फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू टेक अ पिक्चर, यू क्लिक मूव, ऐसे नहीं करना. आप एक ऑब्जेक्ट लो, उसके पास जाओ. फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी दिस ऑब्जेक्ट एंड यू थिंक what different ways can this photo be taken in, and you keep clicking it. Okay, definitely not everybody will be able to take 15 photos every day because life comes in the way, but from now whenever you go, okay, wherever you go, you took one photo, don't go ahead to the next place, stay there, think. अगर आपको कोई अच्छी बाइक दिखी है, आपने एक फ़ोटो लिया, अब सोचो और दूसरा क्या एंगल आएगा. अरे ग्राउंड से भी तो ले सकते हैं, हेडलाइट का जूम इन शॉट भी तो ले सकते हैं, मीटर का शॉट ले सकते हैं, टेल लाइट का ले सकते हैं, उसी पे किसी को बैठा सकते हैं, बाइक को गिरा सकते हैं, ठीक है. कुछ चीज़ पे बेसिकली कोई बच्चे हैं, दे आर लुकिंग एट द बाइक, यू कैन टेक द पिक्चर. समझो अगर एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो फूल बेचने वाला है या पेन बेचने वाला है, वो आता है और बाइक के एक्सेलरेटर को हाथ लगाता है और आप वही टाइम पे फ़ोटो लेते हो. दैट इज़ मोमेंट, राइट. अब ये आइडियाज़ कैसे आएंगे, जब आप ये प्रैक्टिस डेली करोगे. So I want all of you, okay, I want all of you to set a number. Okay, I will take 10 photos, 5 photos every single day, and if you do this exercise, nobody can really stop you from becoming a great photographer. And if you want to become a great photographer, the way is to be a good photographer. I am not a great photographer as well, okay, but if you are a good photographer consistently, you are bound to become somebody great, and you will enjoy photography being good. That is what matters. ठीक है? Understood what practice is in photography, people? Everyone? All right, great. Abhi, this is basically our first lecture. Anybody has any doubts, feel free to ask me. ठीक है?